पे आता हूँ। मैंने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के बारे में बात किया था, कॉमन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास। Center of mass of a particle is a point where total mass of the body is centered or concentrated. And हम्म here we are talking about the center of mass of group of particle, that is called system, center of mass of system. In this case I have हम्म taken, here I have taken two particle m1 and m2 which is at A and B, and their position vector are r1 and r2. Then in this हाँ case, common and center of mass of these two particles is m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2. This is the common center of mass of two particles. If we take यस similar सर example for n particle, then common center of mass of n particle will be m1 r1 m2 r2 plus m3 r3 and so on mn rn divided by m1 plus m2 plus m3 plus mn, where r1 r2 r3 rn are the position vector of m1 m2 m3 and up to mn. We can also write in terms of sigma or summation, sigma mi ri I की value 1 to n divided by sigma mi. In case हम्म of coordinate, in case of coordinate, if we take coordinate of m1 x1 y1 z1, coordinate of m2 x2 y2 z2, and coordinate of mass m3 x3 y3 z3, then common center of mass of the coordinate of common center of mass x is m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 by m1 plus m2 plus m3. It is यस सर by sigma m1 plus m1 x1 divided by mi. यस सर In case of y m1 y1 m2 y2 plus m3 y3 divided by m1 plus m2 plus m3. Similarly for m1 z1 plus m2 z2 plus m3 z3 divided by m1 plus m2 plus m3. क्लियर है? हाँ सर फिर सेकेंड पार्ट आपने लिया था कि when we differentiate in position vector in with respect to dt, then it will be dr by dt m1 dr1 by dt plus m2 dr by d2 divided by m1 plus m2, where dr by dt becomes the velocity and dr2 by d2 becomes velocity. So v is the velocity of common center of mass, where v1 and v2 is the velocity of individual particles of mass m1 and m2. Similarly, if we divide again velocity with respect to time, this becomes acceleration, and lastly we got the formula for acceleration of common center of mass, where a1 a2 is the acceleration, individual acceleration of m1 m2 particle. क्लियर? यस सर यही चीजें आपने यहाँ पे एज इट इज देखा है, जो सेंटर ऑफ मास को हमने यहाँ पे हाँ सर ये वाला पोर्शन है. यस सर अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, मैं इस न्यूमेरिकल को बड़ा करता हूँ, बिल्कुल छोटा सा है, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ. तो ये न्यूमेरिकल यस सर करेंगे. आपने न्यूमेरिकल ऐसा किया ही होगा, बट अभी 1 मिनट में इसको साथ साथ कर देंगे, टाइम नहीं लगाएंगे. 4 particles ठीक है सर having mass m, 2m, 3m, 4m respectively are placed in order at the corner of, देख रहे हैं, A, B, C, D. क्या हुआ है? यस सर Located in and side is A. Locate the center of हाँ mass. Locate the center of mass means find the value of center of mass. यस सर सर इसमें से किसी भी एक को ओरिजिन लेके कर सकते हैं ना देखिए ओरिजिन को सबसे बेहतर है, आपके सामने क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ता हूँ. 4 particles A, B, C, D having mass m, 2m, 3m, 4m respectively are placed in order at corner of a square of side A. Locate center of mass.
अब मैं हाँ जो m पार्ट है, मैं अगर इसकी कोऑर्डिनेट की बात करूं तो a पॉइंट की कोऑर्डिनेट 0 और 0 है, हाँ सर। b पॉइंट की कोऑर्डिनेट a और 0 है, ए कॉमा जीरो, हाँ। c पॉइंट की कोऑर्डिनेट a और a है, ए कॉमा ए, हाँ। और d पॉइंट की और जीरो कोऑर्डिनेट कॉमा ए। 0 a है। ये तो क्वेश्चन में है, मतलब हमें 4 पार्टिकल्स हैं और सभी पार्टिकल के x और y कोऑर्डिनेट मालूम हो गया। हाँ सभी सर। पार्टिकल के x और y कोऑर्डिनेट मालूम हो गया। अब मैं अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं यहां पे लिखूंगा x इक्वल टू m1 x1, तो हम्म। m a पार्टिकल के हाँ, लिए m और x की वैल्यू एम 0, इंटू जीरो। हाँ, प्लस दूसरे पार्टिकल में 2m इंटू इंटू ए। a, ए, तीसरे पार्टिकल में 3m थ्री एम इंटू ए। a, फोर्थ पार्टिकल में 4m फोर एम इंटू जीरो। 0 डिवाइडेड बाय m एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस फोर। 2m प्लस 3m प्लस 4m। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है बताएंगे? सर एक मिनट। सर एक मिनट। एम ए बाय टू। ma/2, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी? सर एक मिनट, वाई कोऑर्डिनेट की देखता हूँ। सर 7 ma/10। देखिए m तो कैंसिल हो जाएगा ना, m ऊपर भी होगा नीचे भी हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ 7 a/10। देख रहे हैं आप यहाँ पे नीचे उसका आंसर भी है, हाँ सर, ठीक है, आप हाँ देख रहे हैं वही उसका है। आंसर भी है a/2, यस सर। a/2 एंड 7 a/2। बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, नहीं। तो अभी आपने सेंटर ऑफ मास का ये हमने कुछ एग्जांपल आपने देख लिया, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं ना सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल का, हाँ सर। ये क्वेश्चन को करने का तरीका ठीक है, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब ये समझाया गया है बट ये करना चाहिए क्वेश्चन। हम्म। अब ये क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, एग्जांपल है, फिर भी हम करेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट देख रहे हैं कि क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया। एज ए सिंपलेस्ट एग्जांपल कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल मास m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। m1 m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d आपको दिख रहा है। वेयर इज द सेंटर यस ऑफ सर। मास ऑफ दिस सिस्टम। अब क्या किया, टेक ओरिजिन एट m1। तो ओरिजिन पे एट m1 का मतलब पहले की कोऑर्डिनेट को, पहले की पोजीशन को मैं 0 मान लूंगा। यस सर। एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 इज इन ए एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट ले लिया। ऐसे तो देखोगे वाई हाँ जेड कोऑर्डिनेट में कुछ हो ही नहीं रहा है, जो कुछ भी हो रहा है हाँ, एक्स बस ए में ही कोऑर्डिनेट। हो रहा है। हाँ, एक्स में फिर हो रहा यहाँ है। पे दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या दिया, d 0 0। हाँ। तो इसकी y और z कोऑर्डिनेट को छोड़ के सिर्फ x कोऑर्डिनेट की COM निकाल सकते हैं आप। यस सर। निकालिए तो जरा, हाँ। निकालिए जरा इसको। टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रोड ए बी यस सर। and CD, each of length L, are joined to form T-shaped frame as shown in the figure. Locate center of हम्म। mass of the frame. Center of mass of uniform rod at the middle point of the rod. यस ये सर। क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन को, ये बहुत अच्छा हम्म। क्वेश्चन है। ऐसे तो कुछ भी नहीं है हम्म। क्वेश्चन, लेकिन सर, समझ बोलिए। हाँ सर, ऐसे है ना ये तो कि ए बी जो वो है रॉड, उसका सेंटर ऑफ मास सी पे होएगा अगर सी पे मिडिल होगा, पॉइंट है वो तो। राइट, सी और पे है, फिर सी डी का ई पे होएगा। मान लो, हाँ। और उन दोनों सेंटर ऑफ मासेस का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो टोटल सिस्टम का पता पड़ जाएगा जो एफ पे है इसमें। एफ है। तो इसमें थोड़ी सी और हाँ। पॉइंट लेते हैं, देखो। अगर ओके। इसकी लेंथ L है, ध्यान से देखो, हाँ। और इसकी भी लेंथ L है, हाँ। तो ये जो पोर्शन है एक साइड से L/2 है,
हाँ, L/2। और ये पोर्शन यहाँ तक भी L/2 है। हाँ सर। अब ये कितना बचा L/2? हम्म। तो यहाँ की मास भी m है, यहाँ की मास m है, जैसा कि मैंने बताया था इक्वल है। तो ये बीच में जो f की हाँ पॉइंट है, वो ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस वो L/4 हो जाएगा। हाँ, L/4। तो अगर आप ओरिजिन C को लेते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन -L/4, 0, -L/4 और 0 माना जाएगा। हाँ, 0 Correct? -L/4। हाँ। हाँ, क्योंकि y कोऑर्डिनेट में। यस सर। क्लियर है? हाँ। हाँ सर। चलिए, अच्छा है। देखिए, रॉड यही वाला रॉड ले लेते हैं जो इन्होंने रॉड लिया है। हाँ सर। ये रॉड की स्टार्टिंग पॉइंट, ये ओरिजिन है ओ, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये इसकी जो ये यस सर। पॉइंट है, इसकी लेंथ l है और इसकी मास m है। जब ऐसे हाँ। क्वेश्चन किए जाते हैं तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ से इसकी लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ l है, तो a से b की डिस्टेंस, a से b की डिस्टेंस को x, a से सॉरी o से a की डिस्टेंस को x लिया गया यहाँ तक, हाँ। और a से b की डिस्टेंस को dx लिया गया। हाँ। राइट? तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या माना है कि अगर यहाँ पे l लेंथ का मास m है तो dx लेंथ का मास कितना होगा? तो ये m/l इंटू dx हो जाएगा। हाँ। इस चीज को मैं dm मान लूंगा, इस चीज को dm मान लूंगा। DM। ओके। dm m/l इंटू dx। हाँ। ठीक है? हाँ। तो dm m/l इंटू dx है। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको एक लिखने का स्टाइल ध्यान करना है, ये वाला इक्वेशन। हेलो सर, आपकी वो आवाज़ थोड़ी कट हो रही थी। अभी ठीक है? हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हेलो। हाँ, अभी ठीक है आवाज़ आपकी। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हम यूज कर रहे हैं। इस इक्वेशन में क्या किया गया? यस सर। हाँ। हाँ, एक्स को इस इक्वेशन में एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया उसे। x इक्वल टू 1/m हाँ, इंटीग्रेट कर दिया। यस सर। x dm लिया गया। यस सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो 1/m, x तो अपनी जगह है, dm की वैल्यू क्या यूज करेंगे? dm की वैल्यू m/l dx, ये वाला पोर्शन m/l dx यूज कर देंगे। अच्छा। m/l dx, ठीक है। m/l हाँ। बाहर आ जाएगा और इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा। हाँ। x का डिफरेंशियल x² हाँ। हो गया। इसको 0 से हाँ m सर। तक करते हैं तो l/2 इसका इंटीग्रेशन आ गया। यस सर। हाँ। एक बार ठीक है। आप इसको अपने तरीके से अभी कर लीजिए, क्योंकि इससे भी बड़ी बड़ी थोड़ा क्वेश्चन अभी आने वाला है। ओके सर। हम्म, सर एक बार आप वो फिगर दिखा सकते हो बस। हाँ, मैं वापस कर लेता हूँ, ठीक है। आप क्या करते हैं कि dm पार्ट is the mass of dx part that you have assumed. Coordinate of dx part अच्छा। in x coordinate is x, in y coordinate is 0, in z coordinate is 0. यस सर। So when suppose करो कि मुझे उसी पार्ट का ये निकालना है zdm, तो हाँ। dm की वैल्यू तो मैं वही लिखूंगा l/m इंटू dx, हाँ। लेकिन z जीरो करने से पूरा ही जीरो आ जाएगा। हाँ। उसी तरीके से y जीरो करने से पूरा ही जीरो आ जाएगा। हाँ। बट x में तो अच्छा x को ठीक है, जीरो आ कर ही गया। नहीं सकते ना। हाँ। तो वो हमने जो कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है, आप देख रहे हो ना, यहाँ लिखा अच्छा। जेड जीरो हाँ लिख रहा सर। है, फिर वैसे लिख रहा है, तो l/2 ये हो गया। यस सर। अभी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर। आप ये टॉपिक लिख हाँ। लेंगे, मैं इसको अभी पूरी डिटेल करता हूँ। हाँ सर, एक मिनट।
सर एक बार आप ये फिर से बता सकते हो, ये x इक्वल टू 1/m इंटू एक्स डी एम का फॉर्मूला? ये तो वही जो फॉर्मूला लिखा है वही फॉर्मूला है, मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ आपको सर। बहुत सिंपल सा लिखना है फॉर्मूला। देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, व्हाइट में लिख रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, ये लो हाँ एक्स डी एम बाई टोटल मास इंटीग्रेशन ऊपर, हाँ बस यही फॉर्मूला। वाई के लिए भी सेम होगा, वाई के लिए भी हाँ वही सर। डी एम बाई एम। अब मैं बताऊंगा डीएम क्या है। जो भी हम पार्ट सपोज करेंगे उसकी मास डीएम होगी, हाँ सर। उसकी कोऑर्डिनेट वाई होगी और एम टोटल मास होगा। इसी तरीके से आप ये हाँ भी लिख एक लीजिए। मिनट। हाँ सर। अब मैं ये जो क्वेश्चन है आपके सामने जो देख रहे हैं, मैं इस चीज को फ्रेश स्पेस में, आपने लिख दिया सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेम सर्कुलर वायर। नहीं सर, एक मिनट में बस, एक मिनट। सर तो ये जो एक्स है, तो वो तो मतलब उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है उसका सेंटर ऑफ मास है, वही है ना? हाँ, किस में, रॉड वाले में? हाँ। रॉड वाले में सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है। मैं वापस दिखाता हूँ फिगर को। हाँ सर। आप देखिए, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है ओ, हाँ सर। ये लाइनिंग है एक्स की हाँ लाइनिंग, सर। एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। हाँ। मान लो जेड यस एक्सिस सर। ऐसे है तो थर्ड वर्ड ये है जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस तो है ही हाँ। नहीं ना यहाँ पे, हाँ वाई जीरो एक्सिस है। तो इधर वाई है। भी जीरो है। तो इस पॉइंट जो डी हम्म। एक्स ए बी है, इसकी कोऑर्डिनेट मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा एक्स का एक्स, वाई का जीरो और जेड का जीरो। यस सर, हाँ ठीक है, आ गया। ठीक ओके। है, तो जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला, आप हाँ। मान लो कि आप x निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, तो x तो निकाल दिया आपने, y निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, तो आपका रूल क्या होगा? रूल होगा y डी एम ओके। बाई एम। y जो आपने लिखा है, y तो इसका कोऑर्डिनेट है, तो y तो यहाँ पे जीरो है ना आपके पास, y तो जीरो है। हाँ सर। तो यहाँ पे जब जीरो हाँ। पुट करेंगे तो पूरा ही y जीरो हो जाएगा। हाँ ठीक है, वही तो किया है मैंने। ठीक है सर, आ गया। ठीक है, हम्म। अब दूसरा टॉपिक लिख लीजिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, हाँ जो आगे हमने निकाला हुआ था। सर लिख लिया। लिख लिए ना? हाँ। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर जो आपने लिया है, उस चीज को अभी हाँ मैं सर। उसी चीज को लेता हूँ। देखो ये एक्स एक्सिस है, कोई भी एक्सिस जो आपने सपोज किया है, ये हमने डॉटेड लाइन लिया, और ये सर्कल, सर्कल ये रहा सर्कल, सेमी सर्कल जिसको आपने सपोज किया है, यस ये सर। इसकी ओरिजिन है। यहां से क्या किया है, ये हमने आ यहां लिया और ये लिया, ये लिया हमने थीटा, और ये पोर्शन हमने ले लिया डी थीटा। यस सर। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, ये आर है, ये ए पॉइंट ले लेते हैं, ये बी पॉइंट ले लेते हैं समझने के लिए। हाँ आपको सर, पता है आर जो, हाँ आर सर, रेडियस आर है, जो डिस्टेंस है वो ओ से ए तक है। हाँ ओ रेडियस से ए, ठीक है। ओ से बी सभी रेडियस है ना इसका। हाँ सर ठीक है, रेडियस। तो अगर ये आर है तो ये पोर्शन जो है आर कॉस थीटा होगा, हाँ। और ये पोर्शन
ये जो है परपेंडिकुलर ये वाला पोर्शन ये आर साइन थीटा हो आर जाएगा। साइन थीटा। हाँ अच्छा, ए बी जो लिखा है मैंने, ए बी बनाया बड़ा है बट काफ़ी छोटा माना जाता है, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस काफ़ी छोटा है। आप इसको डी एक्स मान लो। अच्छा ठीक है। ठीक है, डी एक्स मान लो समझने के लिए। ओके। हाँ लेकिन डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? आप ट्रायंगल ए ओ बी में देखेंगे तो थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस होता है। हाँ सर। तो थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस होता है, तो मैं इसकी वैल्यू को निकालूंगा तो डी थीटा इक्वल टू आप लिखेंगे डी एक्स डी बाई आर। एक्स बाय आर। हाँ तो डी एक्स इक्वल टू आर डी थीटा हो जाएगा। हाँ। ठीक है, और इसकी यस मास सर। कितनी होगी? तो यहाँ पे ये सरकमफेरेंस का हाफ है, सेमी सरकमफेरेंस है। हाँ तो पाई आर जो सरकमफेरेंस का हाफ है सेमी सर्कल, उसकी मास अगर m है तो ए बी जो dx है इसकी मास को मैं dm मानूंगा और ये होगा m बाई पाई आर हाँ इंटू सर। डी एक्स। m बाई पाई आर हम्म। इंटू डी एक्स। यहाँ पे आप यस m बाई सर। पाई आर को dx, जो पाई आर को dx लिखेंगे, dx की वैल्यू को क्या लिखेंगे आप? आर डी थीटा। हाँ सर। आर डी थीटा, इसी को हाँ मैं एम बाय dm पाई आर इंटू आर डी आर थीटा, डी थीटा। इसी ओके। को मैं dm कहता हूँ, इसी को dm सपोज करता हूँ m बाई आर। यस सर। राइट। अब मैं अगर पूछूंगा जो बी पॉइंट पे ये जो मास सर है, हमने इसे डीएम से क्यों डिवाइड किया बाद में? नहीं डिवाइड नहीं किया मैंने, उसको कहा दिस इक्वल टू सी। मतलब। डिवाइड नहीं है, डिवाइड इज नथिंग, अच्छा ठीक है। दिस इज इक्वल टू, इसको डिवाइड को हटा दो। अच्छा अच्छा ओके डीएम। ठीक है ना? हाँ दिस इज इक्वल टू डी एम। आर आर कैंसिल, यस सर। आर हाँ आर कैंसिल, हाँ बचेगा क्या? कैंसिल। एम बाय पाई थीटा डी थीटा। हाँ। एम डी थीटा बाई पाई बच गया। यस क्लियर है? सर। अब मैं अगला यस सर। क्वेश्चन, जो बी पॉइंट है, अब मैं एक कॉमन चीजें है जिसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसलिए मैं समझा रहा हूं, ओके। ध्यान देंगे। ओ से, कलर चेंज करता हूं ताकि ब्लू कलर ले लेता हूं। हाँ, ओ से लेफ्ट में जितना साइड है उतना ही राइट में साइड है। हाँ तो यस सर। सेंटर ऑफ मास तो इसकी एक्स कोऑर्डिनेट लाइन में ही से रहेगा। तो होना ही नहीं हाँ है, तो एक्स की वैल्यू जीरो हो हाँ जाएगी। सर। तो हाँ एक्स को मैं सर। कोई सॉल्व नहीं कर रहा हूं, एक्स इक्वल टू जीरो। हाँ, वाई में, वाई के नीचे कुछ नहीं है, ऊपर कोऑर्डिनेट वाई है ना, हाँ तो मैं वाई में ही सिर्फ यस देख रहा हूं। सर। तो मुझे सेंटर ओके। मास निकालने के लिए मुझे क्या करना है? अब फॉर्मूला देखिए, वाई डी एम बाई एम, जैसा कि मैंने पहले बताया था, करेंगे फॉर्मूला और उसका इंटीग्रेशन। हाँ राइट, इंटीग्रेशन करना है। यस सर। इंटीग्रेशन भी कहां से करेंगे वो भी देखिए। टोटल लेंथ, जीरो से लेके टोटल लेंथ है इस सेमी सर्कल का पाई आर, हाँ सर। इतना इंटीग्रेशन होगा। ठीक है। अब मैं ओके। y कोऑर्डिनेट, जो बी ए बी पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट कितना है? r साइन। ए बी का वाई कोऑर्डिनेट अच्छा नहीं सर ए ओ का है ना आर साइन थीटा। देखो मैंने क्या बताया था, a और b में कोई फर्क नहीं है, बहुत छोटा है, मैंने फिगर अच्छा में बनाया हाँ था हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक छोटा है। है। तो ए बी का कहो ओके या हाँ ए के कहो तो आर ठीक साइन है। थीटा है। तो मुझे यहाँ यस पे सर। y निकालने के लिए अब देखो क्या करेंगे, y की वैल्यू मैं लिखूंगा आर साइन थीटा, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है, और dm की वैल्यू हमारे पास m डी थीटा बाई पाई हो चुका है, यस सर। एंड डिवाइडेड बाई पाई m, टोटल मास, जीरो से पाई आर। यस सर। यस सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? नहीं। अब एक और चीज गलती हो गई लिखने में मेरी, जो मैंने पाई आर लिखा है ना वो पाई आर नहीं करना है, हमें डी थीटा करना है, क्योंकि हमारा जो डिफरेंशिएशन हो गया ना वो टर्म्स ऑफ थीटा कन्वर्ट हो चुका है, तो हमें आर नहीं लिखना है। ठीक है ना, ये आर कैंसिल कर देना है, सिर्फ जीरो टू पाई, क्योंकि अच्छा 180 डिग्री है ना जी। हाँ अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एम से एम कैंसिल हो गया, हाँ सर। आर बाई पाई को बाहर करते हैं, हाँ करते हैं। अब ये हो गया साइन थीटा डी थीटा डी थीटा, यस सर। जीरो से पाई। हाँ साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। श्योर है?
हाँ तो माइनस हम बाहर कर लेते हैं। हाँ सर। कॉस पाई माइनस कॉस जीरो कर सकते हैं। हाँ सर, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो। हाँ, तो कॉस पाई की वैल्यू ओके, -1, -1 और -1, -2 हो गया। माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2r/पाई। हाँ, 2r/पाई, यस सर। 2r/पाई ये हो गया y कोऑर्डिनेट। हाँ, x जीरो होगा, y जीरो x होगा, z जीरो है, जीरो होगा। हाँ। तो इसकी वैल्यू हो यस जाएगी सर, 0, कॉमन टू 2 आर आर बाय बाय। बाई पाई। और यस सर। श्योर है? हाँ, यस सर। आप इसको नोट करेंगे? हाँ, कर लीजिए नोट। यस सर, 1 मिनट कर लेता हूँ। आपका क्वेश्चन है कि dm m बाई m d थीटा बाई पाई को dm क्यों लिया? हाँ, पाई आर सो डी ए। हाँ, का मास m, तो dx का मास m बाई पाई आर इंटू डी एक्स। यस सर। dx की वैल्यू आर डी थीटा, हाँ, dx की प्लेस पे आर डी थीटा पुट किया गया। यस सर। आर आर कैंसिल, हाँ, बचा एम डी थीटा बाई पाई। यस सर। दिस इज सपोज एज ए dm, मास ऑफ ए बी पार्ट। ए बी, हाँ सर, वही वही मैं कह रहा था कि डी एक्स का मास है ना ये डी एम। यस राइट, यस सर, ओके। हो गया। सर 1 मिनट बस। अभी हमें करना है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट। सेमी प्लेट, सर्कुलर ओके। रिंग और सेमी सर्कुलर प्लेट में फर्क है, इसको समझना है। ओके सर। सेमी सर्कुलर जो प्लेट होता है और रिंग होता है उसमें फर्क है। देखिए ये मैंने एक बना दिया सेमी सर्कुलर रिंग। इसमें क्या होता है कि ये हाँ बीच का जो पोर्शन है ना ये खाली होता है, ब्लैंक होता है रिंग में। हाँ प्लेट में क्या होगा कि ये चीजें भरी होगी, हाँ। फील्ड होगा ये फील्ड होगा। यस सर। जब ये फील्ड होगा तो अंडरस्टूड है कि मास का फर्क आ जाएगा, जो मास निकालने का स्टाइल है बदल जाएगा यहाँ पे। हाँ सर, इसमें वो आ जाएगा ना। एरिया आ जाएगा। हाँ, एरिया आ जाएगा उसमें। पहले हमने निकाला था पाई आर की हाँ। मास एन, अब की बार ये यस नहीं, सर। अब की बार हमें तो लेना है पाई आर स्क्वायर कर लेंगे। हाँ। पाई आर स्क्वायर बाई 2, हाँ। क्योंकि हाफ है ना। हाँ सर, पाई आर मास स्क्वायर एम बाय 2। माननी पड़ेगी हाँ। कि मास एम माननी। यस सर। अब मैं इसी डेरिवेशन आप कर सकते हैं या मैं कर दूं हाँ सर, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। इसको? ठीक है, हाँ। मैं थोड़ा और यस सर। हिंट देता हूं ताकि आपका ट्राई सही हो जाए। ठीक है। ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, क्या सपोज करना है, आपको क्या करना है इसमें ध्यान से देखना। इस हम्म। डायग्राम में क्या करना कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे, सेंटर से यस सर। स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक डी आर थिकनेस का ऐसा सपोज करना है, रिंग लेना है डी आर थिकनेस। ये जो थिकनेस है ना ये वाला पोर्शन, ये डी आर होना चाहिए हाँ। आर डिस्टेंस पे। और अच्छा। ये जो डी आर वाला पार्ट है, ये पार्ट, इसकी पहले से आपको डीएम निकालनी है, इस पार्ट की डीएम। अच्छा। और इसकी कोऑर्डिनेट, चूंकि ये भी एक सर्कल है, ये भी तो एक सेमी सर्कल है ना। हाँ सर, तो सेमी जीरो सर्कल, से लेके आर तक कर देंगे। नहीं बाद में तो इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल आर होगा, हाँ सर। लेकिन पहले समझना है कि हम वाई डीएम कैसा ले। आपको पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप आपको वाई डीएम वाला पार्ट तो करना है ना, वाई डीएम बाई एम करना है। हाँ। तो y, तो आप y जो है इसकी रिंग की सेंटर ऑफ मास करनी है, और dm निकालने का तरीका क्या है, पाई आर स्क्वायर एरिया की मास m। तो ये जो ये वाला पार्ट हमने लिया है डी आर थिकनेस का रिंग, इसकी मास, इसकी हाँ सर। एरिया निकाल के इसकी मास निकालनी है, जिसको हम dm सपोज करेंगे। और y की वैल्यू हाँ क्या यूज करेंगे पता है, ये 2r/पाई, हाँ हाँ हाँ, यही करेंगे। 2r/पाई यस सर। हाँ। ये करेंगे। देखिए सेंटर ऑफ मास ऐसे में आप देख लीजिए, इसका आंसर 4r/3 पाई है, निकाला हुआ है यहाँ पे राइट में देख रहे हैं ना। अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है, ओके। कर सकते हैं हाँ। कोशिश। हाँ सर, एक बार करता हूँ। एक बार कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। यस सर। देखिए आपने स्टेप कैसे लिया है, मैं थोड़ा सा
इसी में बता देता हूँ। हाँ सर, मैंने ये लिया है कि पाई आर स्क्वायर बाय 2 का मास m लिया। इसकी एरिया कैपिटल कितनी एम है, निकाले? मैं यहाँ तो पे डीएम होएगा एक 2m बाय यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एक, इनटू dr। एक चीज समझना जरूरी है। मैं येलो कलर में जो लिखता हूँ उसके बारे में बताना। इसकी आपने जो इसकी मास क्या लिया, एरिया क्या लिया इसकी? इसकी एरिया, एक मिनट सर, इसकी एरिया जानना जरूरी है। एक मिनट सर। देखिए उसकी एरिया होगी तभी क्वेश्चन होगा सॉल्व, पहला स्टेप वही जरूरी है। सर मैंने बस उसका वो डीएम निकाला है। डीएम कैसे निकाला वही तो मैं जानना चाहता हूँ। सर वो है कि 2m बाय पाई आर स्क्वायर इनटू dr। ये गलत हो गया। देखिए इसकी मैं अलग से डायग्राम बनाता हूँ, यह छोटा सा, ये ले लो डायग्राम, फ्रेश डायग्राम ले लो। अच्छा एक मिनट सर। सर ऐसे होएगा क्या, 2m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू dr इंटू पाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2। हेलो। आप एक दूसरा डायग्राम दिख रहा है आपको? हाँ सर, दिख रहा है। देखिए पाई आर स्क्वायर का मास बाई 2 का मास m, यस सर। यूनिट एरिया का मास m बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2, 2। एरिया लिए है। अब इसके बारे में देखो, ये जो है ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ इसकी लेंथ है पाई आर। पाई स्मॉल आर इसकी विड्थ कितनी है? डी आर। डी आर। तो ये इसकी एरिया नहीं हो गई क्या? हाँ सर। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 की मास m, तो यूनिट एरिया की मास m, तो इतनी एरिया, क्योंकि इसकी इतनी एरिया की तो मास चाहिए। हाँ सर, अच्छा पाई आर ठीक है, डी हाँ आर आ की गया। मास हो जाएगी, ओके। पाई आर डी आर की मास हो गई 2m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर डी आर। पाई आर डी आर। यस सर। पाई आर डी आर, पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया 2m r बाय 2m आर आर स्क्वायर डी बाई आर। आर स्क्वायर। यस अब रूल सर। क्या कहता है? आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट निकालने का रूल ये है आपके पास, वाई यस डी एम, सर। जो भी वाई डी एम बाई एम इंटू इंटीग्रेशन, जो कि 0 से r होना है, कैपिटल R, ये तो पता है हमें। यस सर। y की वैल्यू मैंने पहले ही बता चुके थे कि क्या निकालना है हमारे पास, 2r हाँ। बाई पाई हमने निकाला था ना। यस सर, 2r बाय पाई। तो 2r बाई पाई इंटू 2mr dr बाई आर स्क्वायर, ऐसा ही है। यस सर। m से m कैंसिल, यस सर। 4 बाई पाई आर स्क्वायर बाहर, यस सर। आर स्क्वायर डी आर, हम्म। 0 से r, इसका r क्यू बाई 3 हो जाएगा। यस सर। 4 नहीं है, पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यू बाई 3 कैंसिल, यस सर। 4r बाई 3 पाई। क्लियर है? हाँ आ गया अब, ठीक है। ओके सर, मैं उसकी जगह वो एरिया ले रहा था उसका, मतलब नहीं, एरिया की जगह मैं उसका वॉल्यूम, नहीं कुछ। हाँ सर आ गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास पे ही, ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, इसलिए बस हम एक बार इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसमें ओके। ज़्यादा नहीं लगाएंगे। यस सर। Three particles
ये एच वर्मा का क्वेश्चन है आपका, वर्कआउट का हम्म एग्जाम्पल है। 3 masses हम्म 0.5 kg, 1 kg, 1.5 kg, place 3 corners of right angle triangle, साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास सिस्टम। हम्म 0.5 kg, सो 1 kg, 1.5 kg, हाँ डिस्टेंस साइड दिया हुआ आप देख रहे हैं। हाँ सर। इसमें इसको ओरिजिन मान लेंगे, इसकी कोऑर्डिनेट को सर M1 R1 करके हो जाएगा। इसकी कोऑर्डिनेट 4 सेंटीमीटर 0 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसकी कोऑर्डिनेट यस 0 सर। सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम्म बस आगे सॉल्व हो जाएगा। यस सर। x इक्वल टू m1 x1 x2 m2 x2 प्लस m3 x3, m1 प्लस m2 प्लस m3, जो उसके कोऑर्डिनेट है वैल्यू दिया हुआ है, सीधा सीधा सॉल्व होकर निकल जाएगा। यस सर। हाँ ठीक है, आ इसमें जाएगा। लगाने की जरूरत है। हम्म ये उसी चीज को सॉल्व किया गया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हम कुछ डिस्कशन करेंगे, करने की जरूरत है नहीं। ओके। half of rectangular plate shown half of rectangular plate shown is made up of material of density rho 1 and other half of the material of of density rho 2. Length of the plate is L. Locate the center of mass. अब इस ओके क्वेश्चन में कुछ पॉइंट, सर सबसे पहले हाँ जो पहला पॉइंट है ये वाला पार्ट है, जो C1 यस वाला सर। पार्ट है, ये वाला पार्ट, हम्म इसकी एरिया को आप, एरिया तो दोनों की बराबर होगी क्योंकि हाफ हाफ हाँ सर। कर रहा है, तो मैं, हाँ इसकी डेंसिटी रो 2 है तो इस दोनों की एरिया बराबर होगी। तो हाँ मैं सर। यहाँ पे अगर इसकी, सर बोलिए। सर लेकिन हमें दूसरी साइड नहीं दी है तो हम इसका एरिया A/2 ले सकते हैं ना? जरूरत नहीं है, आप एरिया a/2 हाँ ले सकते हैं। मान लो टोटल है एरिया ना? ए मान लिया, टोटल हाँ। एरिया ए मान लिया, तो पहले वाले पार्ट की मास जो है, पहले वाले पार्ट की मास को मैं m1 मान लेता हूँ, दूसरे वाले हम्म पार्ट की मास को m2 मान लेता हूँ। तो m1 की जो मास होगी उसकी रियल वैल्यू होना चाहिए A/2 a/2 इंटू DM। रो 1, हाँ हाँ रोहन ठीक है। और यहाँ a/2 इंटू रो 2। रो 2 यस सर। ओ को ओरिजिन मानना है, ओ को क्या मानना है, ओरिजिन। ओके ओरिजिन हाँ। अच्छा, ये सर बीच वाले बताता हूँ, ये जो पोर्शन है l/2 है, ये वाला लाइन, हाँ ये l/2 है। तो यस ये सर। पोर्शन l/2 है और इसके बीच में C1 सेंटर ऑफ मास है, जो उसका भी हाफ यस होगा, सर। मतलब ये जो डिस्टेंस होगी ये l/4 होगी। हाँ L/4। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट m1 जो कोऑर्डिनेट है उसकी x कोऑर्डिनेट जो होगी वो l/4 होगी, C1 हाँ L/4 पे हो जाएगा। और दूसरी को m1 की वैल्यू ध्यान रखना, आप a1/2 इंटू रो 1 लिखोगे, ओके a1/2, और जो C2 है वो L से, यहाँ L से भी l/2 पे l/2 प्लस l/4 ऐड हो जाएगा। C2 की हाँ। पोजीशन क्या है, देखो यहाँ सर तो L/2 l/2 प्लस है, L/4 होएगा तो फिर 3 L/4। यस 3 l/4 हो जाएगा, ये m2 की लोकेशन हो जाएगा। यस पर सर। अब इसकी सेंटर ऑफ मास आप निकाल के बताइए क्या निकालेंगे। सर तो एक मिनट, तो ओरिजिन से इसका ले लेंगे हम C1 का L/4 और इसका 3 L/4। उसके बाद फिर C1 इंटू उसका जो भी सेंटर ऑफ मास आएगा इस प्लेट का हम्म, M1 इंटू L/4 प्लस, और C2 का जो आएगा M2 आ जाएगा, M2 इंटू 3 L/4 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो m1/m2 की वैल्यू भी पुट कर देंगे। यस सर A/2 इंटू रो 1 और A/2 इंटू रो 2। हाँ ठीक है, हाँ यही है। यस सर। ओके। तो
ये जो भी सॉल्व करके आ जाएगा आंसर आ जाएगा। जो मैंने अभी लिखा है आपको दिख रहा है ना, जो रेड कलर में लिखा है साफ साफ। हाँ सर दिख रहा है सर। मैंने ये जो प्लेट्स हैं इंडिविजुअल, हम्म, हाँ वो स्क्वायर्स हैं क्या? हम बता नहीं सकते ना, नहीं ऐसा है ना, देखो क्योंकि इन्होंने दूसरी क्वेश्चन साइड दी दिए नहीं है हमें। तो हमें उसकी हाँ जरूरत भी नहीं है। देखो यहाँ पे A/2 यस सर। हाँ A/2 वही मैं कह रहा था कि A/2 कैंसिल लेंगे हो रहा फिर है। तो। यस सर हाँ। ओके। तो बस कैंसिल हो रहा है। ओके ठीक है। ठीक है सर हाँ। आंसर फाइनली हम सॉल्व करेंगे ना तो यही आएगा जो इनका आंसर आया है। ओके ठीक है, सॉल्व करना चाहते हैं आप करके देख सकते हैं, यही आएगा। हम्म। ठीक है, तो ये भी सर इसका आंसर तो आएगा ना 2L/A × ρ1 + ρ2। मतलब सॉरी, नहीं वो नहीं आएगा, अलग आएगा थोड़ा। देखो ओके L/4 कॉमन ले लो। हाँ हाँ वो तो फिर 2 से L डिवाइड कर देंगे। तो L/4 कॉमन ले लोगे और A/2 तो कैंसिल ही हो गया ना। हम्म A/2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया वो। कॉमन ले लो ρ1 + 3 ρ2/ρ1 + ρ2। आप 1 मिनट कर ही लो, कंफ्यूजन खत्म कर लो इसको, यस सर हाँ। कर लो 1 मिनट। अब मैं जो क्वेश्चन कह रहा था वही क्वेश्चन आ गया। यस सर। डेंसिटी ऑफ लीनियर रॉड ऑफ लेंथ L varies rho equal to A plus हम्म bx. X is the distance from the left end. Locate the center of mass. यस सर। अब ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, पहला पॉइंट। हम्म रो इक्वल टू A plus bx, सेंटर ऑफ मास निकालना है। हाँ सर हाँ। मैं इसको फ्रेश पेज में कर रहा हूँ। हम्म ये डेंसिटी दिया हुआ था, लीनियर डेंसिटी। यस सर। इसकी लेंथ को L मान लिया, ये ओरिजिन है। हाँ इससे x यस डिस्टेंस सर। पे, हम्म इससे x डिस्टेंस पे dx मास, dx। dx मास ले लिया। यस सर। dx सपोज किए। हाँ dx की मास कितनी होगी, तो सिंपल सी मास निकालने का dx की मास होगा नहीं नहीं, रो dx, m/l × dx। रो dx सिंपल, अच्छा हाँ ठीक है वो भी हो जाएगा हाँ। dm। रो dx। अब हाँ हमें x निकालने यस के लिए सर। रूल क्या लगाना है, रूल लगाना है x dm/m, ये लगाना है। हाँ हम्म तो रो dx × x/dm, सॉरी बाय m। तो x और dm की मास कितनी हो गई, रो dx। dm की मास हो गई रो dx। तो रो की वैल्यू a plus यस bx है ना, सर हाँ वो पुट कर देंगे। a plus bx dx। हाँ अच्छा सर ठीक है आ गया समझ। तो ax dx/m हम्म + bx² dx/m, हम्म तो स्प्लिट करके हो जाएगा। हम्म हम्म इसको आगे बढ़ सकते हैं, आप कर सकते हैं आगे। सर तो इस हाँ सर। देखिए ये a जो है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मानेंगे तो आप ध्यान रखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू dx, वॉल्यूम हम्म हो गई ना वॉल्यूम। हाँ सर लेकिन कैपिटल M तो टोटल वॉल्यूम है ना। कैपिटल M टोटल वॉल्यूम नहीं है, उसके लिए हमने इंटीग्रेशन जीरो से सॉरी ऊपर सॉरी किया होता टोटल मास। हाँ है। हाँ, जीरो से ऊपर तक इंटीग्रेशन किया गया है। हाँ तो
ऊपर वाले पोर्शन को अगर और आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिखेंगे आप? पहला स्टेप मैं लिखता हूँ ए एक्स डी एक्स, ए तो हटा दो, हम्म। कैंसिल हो गया, प्लस दूसरा स्टेप बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, यस सर। इंटीग्रेशन जीरो से एल दोनों में आ जाएगा। नीचे हाँ ए डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स। सर, मेरे को नीचे वाला समझ नहीं आया, क्यों लिया है ये? देखिए, नीचे में तो टोटल एम ही लेना था ना, हाँ। या इसको आप डीएम करके ऐसे छोड़ दीजिए, एक्स की तो जरूरत ही नहीं थी नीचे। हम्म। तो नीचे तो ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स एरिया, देखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सर और लेकिन जो एम है वो तो टोटल मास है ना? एम टोटल मास है, तो हाँ। एम टोटल देखो, इसीलिए तो इंटीग्रेशन ये पूरा किया गया। अच्छा ठीक है, हाँ। अच्छा ओके, हाँ समझ आ गया। ये पहला ठीक है पोर्शन सर। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए एल स्क्वायर बाई टू, दूसरा हो जाएगा बी एल क्यूब बाई थ्री, नीचे क्या आ हाँ। जाएगा ए एल ए एल प्लस बी एल, स्क्वायर बाई टू, नहीं बी एल स्क्वायर बाय टू, हाँ भाई। यस सर। ओके। तो ऊपर आ जाएगा ए एल बाई टू प्लस बी एल स्क्वायर बाई थ्री बाई ए प्लस बी एल बाई टू, यस सर। ऐसा ही आएगा ना। हम्म। से करता हूँ, एक मिनट। अभी ये जो क्लास आपने देखा, ये क्लास सेंटर ऑफ मास रोटेशनल मोशन के ऊपर क्वेश्चन था, जिसमें हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट और कुछ एच सी वर्मा के बुक से न्यूमेरिकल किए हैं। ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, करेंगे अच्छा रहेगा। और ये आपके नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए और आईआईटी जी मेन के लिए बहुत यूजफुल है। इवन आप 11th क्लास में भी ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं और तो भी आप ये क्वेश्चन को करें। ये हमारी वीडियो को बार बार आप रिप्ले करके देखेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, ताकि ये हमारा वीडियो आपको बार बार जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको दिखता रहेगा। और ये दूसरे स्टूडेंट जिनको भी सेंटर ऑफ मास में प्रॉब्लम है उनको आप शेयर कर दीजिए अपने क्लास में, अपने जो भी आईआईटी और नीट के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं उनको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।